ہم آیت پڑھ لیں گے اور پھر بیٹھ جائیں گے. اگر کسی سے نکل آئی ہوئی ہو تو وہ آمین کر سکتا ہے. 3 باب اس کی 15 آیت. آمین. لکھا کہ جو کچھ ہے وہ پہلے ہو چکا اور جو کچھ ہونے کو ہے وہ بھی ہو چکا. خدا گرسکا کو پھر طلب کرتا ہے. خدا ان کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو. آمین. اب سے بیٹھ جائیں. میرے سے جب میں نے یہ وائس کی کتاب کا تیسرے چیپٹر کی 15 ورس ریڈ کی ہے تو کوئی بیٹا یا بیٹی بیٹھا ہوا یہ اس آیت کے بارے میں تھوڑا سا بتا دے تو بڑا اچھا لگے گا. اس آیت میں یہ مرکوم ہے، اس کا پیسج یہ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہ خداوند نے پہلے خداوند کو معلوم ہے، یعنی کہ جو کچھ ہو چکا جو ہونے والا ہے وہ تمام چیزیں خداوند کو پتہ ہے، اور ہماری زندگی کے پلانس آیا اچھے ہیں برے ہیں وہ سب خداوند جانتا ہے. آمین. آمین. بھائی نے بڑا اچھا بیان کیا. میرے سے وائس کی کتاب اور آپ کو سنڈے اسکول میں بھی یوتھ کی جو بائبل کلاس ہوتی ہے اس میں بھی بچوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ ایک کون سی بک ہے. کون سی بک؟ ویری گڈ. زوردار تالیاں بجائیں گے بچے کے لیے. واقعی یہ شاعری کی بک ہے. بچوں کو یاد آ، مجھے بھی میرے بیٹے سے پتا چلا کہ شاعری کی 5 بکس ہیں اور مجھے بڑا اچھا بھی لگا. اور یہ بالکل شاعری کی بک ہے. جب اس کو لکھنے والا سلیمان ہے، سلیمان جب اسے لکھ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں جو کچھ ہے وہ ہو چکا اور جو کچھ ہونے کو ہے وہ بھی ہو چکا. خدا گزرے وقت کو پھر سے طلب کرتا ہے. میرے سے جب یہ بڑی خوبصورت بات آئے تو ہمیں سمجھ آتی ہے تو اس کا مطلب کہ جو چیزیں آج چل رہی ہیں وہ ہو چکی ہوئی ہیں. ہم اس کے جب وائس کی کتاب کا پہلے چیپٹر کی اس کی 9ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی سیم یہی ورڈ لکھے ہوئے ہیں. 9 آیت میں لکھا ہے جو ہوا وہی پھر ہوگا اور جو چیز بن چکی وہی ہے جو بنائی جائے گی. دنیا میں کوئی چیز نئی نہیں ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جتنے بھی کھیت ہیں، نباتات کے درخت ہیں، یہ سارے کے سارے آلریڈی بنے ایک ہی دفعہ ہیں. لیکن سم ٹائم میرے سے کہتے ہیں کہ یہ نئی چیز میں نے دیکھی ہے. وہ اصل میں نئی چیز نہیں ہوتی، وہ تو شروع سے ہی بن چکی ہے. اس کی مثال میں دیتی ہوں. ایک کھیت کے اندر فصل لگائی جاتی ہے اور اس کھیت کے اندر 3 طرح سے کٹائی 3 دفعہ کٹائی کی جاتی ہے اور فصل ایک ہی لگتی ہے. کوئی 3 ماہ کے بعد فصل کو کاٹتا ہے، کوئی 6 ماہ کے بعد. ڈفرینٹ ٹائم ہوتا ہے فصل کا اور اس کھیت میں بار بار ایک ہی کام ہو رہا ہے. اگر ہم دیکھیں تو گھر کے کام کاج کی بھی مثال لی جا سکتی ہے. ہر روز کچن کا کام، کپڑے دھونے، صفائی کرنی، ہسبینڈ کا ناشتہ تیار کرنا ہے، بچوں کے لیے لنچ، یہ ہر روز وہی کام ہم ریپیٹ کر رہے ہیں. ہم ایک سرکل کے اندر گھوم رہے ہیں. جب ان باتوں کے اوپر ہم غور کرتے ہیں تو پھر بہت سے لوگ مکاشفہ کے بارے میں کہتے ہیں. میرے عزیزو، وائس کی اس آیت کو میں پیدائش اور مکاشفہ کے ساتھ جوڑ کے آپ کو آج بتاؤں گی، سمجھاؤں گی، سیکھیں گے اور سیکھتے آگے بڑھتے جائیں گے. مکاشفہ کی کتاب میں جو پہلا باب، پہلا چیپٹر اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے خداوند خدا جو ہے، جو تھا، جو آنے والا ہے، یعنی قاتل مطلق خدا فرماتا ہے میں اول اور اومیگا ہوں. یہ بات خداوند نے مکاشفہ کی کتاب میں 6 دفعہ ریپیٹ کی ہے. اول اور آخر اور میگا جو لفظ یوز یہاں پہ ہوا ہے، الفا اور میگا، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اس کو ایسے ہی انہوں نے لکھ دیا ہے، اس کا ترجمہ نہیں کیا. جب ہم اس کے ترجمے کے اوپر جاتے ہیں تو اس کا ترجمہ یہ ملتا ہے خدا ابتدا میں تھا اور انتخاب آخر میں بھی خدا ہمارے
साथ है। जब ये हमें 6 बातें 6 दफ़ा ये आयत हमें मुकाशवा की किताब में मिलती है, तो यीशु अपने बारे में अब्रानियों के खत में भी कहता है 13 बाब उसकी 8 आयत में, यीशु मसीह कल और आज और बल्कि अब तक यकसा है। यीशु अपनी ज़ात के बारे में ये बार-बार हमें कहता हुआ नज़र आ रहा है। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर भी यीशु खुदा के साथ मौजूद है, या जहाँ पे वो कहता है कि आओ हम इंसान को अपनी शक्ल पे बनाएं। जाहिर बात है वो 2 लोगों से ज़्यादा लोग हैं जो वो वहाँ पे हम का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह मेरे से हम आगे बढ़ते हैं तो यीशु ने मुकाशवा की किताब में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर पैदाइश की किताब के अंदर हो चुकी हुई हैं। हम अगर इन किताबों के बारे में दोनों किताबों को आपस में जोड़े तो हमें बहुत से ऐसे ईमानदार पैदाइश के अंदर नजर आते हैं जो यीशु को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं। बाइबल मुकद्दस का एक स्कॉलर है, वो बयान करता रहता है कि बाइबल मुकद्दस की हर आयत में यीशु का नजर आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बाइबल मुकद्दस की हर आयत में या किसी भी चैप्टर में यीशु नजर नहीं आ रहा तो आप उसमें से ढूंढें, तलाश करें। जब आप तलाश करेंगे तो आपको यीशु वहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरह मेरे अजीजों, जब हम ईमानदारों को देखते हैं तो बहुत सी हमें ऐसे आदमी हैं, लोग हैं जो यीशु को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं। पैदाइश के जब पहले चैप्टर में हम जाते हैं तो वहाँ पे एक आदम हमें नजर आता है, और वो आदम बड़ा ही खूबसूरत आदम है। और मेरे अजीजों, उस आदम ने गुनाह नहीं किया, ये सारे लोग जानते हैं। गुनाह किसने किया था? हवा ने किया था। और सिर्फ एक ही दफा हल्का सा आदम खुदा से कहते हैं कि जिस मददगार को तूने बना के मेरे लिए भेजा उसने ये मुझे फल दिया। वो ज्यादा इसके बात के ऊपर बहस करता हुआ हमें नजर आता ही नहीं। वो बड़ी खुशी के साथ, बड़ी वफादारी के साथ अपनी बीवी का साथ देता है और बाकी अदन को छोड़ देता है। अगर मेरी तरह वहाँ पे आदम होता तो आदम कहता नहीं, मैं तो बागी अदन को नहीं छोड़ूंगा, मैंने तो कोई ऐसा गुनाह किया ही नहीं, इस औरत ने किया है, लिहाजा खुदा आप इसी को ही सजा दे, मुझे मत सजा दे। आदम का ये रवैया हमें यीशु की शक्ल दिखाता है। यीशु भी जब इस वो आलमे बाला पे थे, तख्त नशीन थे, सारी कायनात मेरे अजीजों उसके लिए खलक हुई और वो वहाँ पे एक अच्छी जगह पे रह रहा था। जिस तरह आदम अदन के बाग के अंदर अच्छी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन वो मेरी और आपके लिए दुनिया में आया। जिस तरह उसने तो कोई गुनाह नहीं किया था, मैंने और आपने गुनाह किया था। उसने हमारे गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए अपने आप को सलीबी मौत का सुपुर्द कर दिया, ताकि उसके अजीज लोग, जिसको वो अजीज रखता है, वो निजात पाए। ये तो हो गया आदम क्यों, उसके अंदर यीशु को हमने देख लिया। इसी तरह जब हम आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, क्योंकि मेरा टॉपिक है जो हो चुका वो फिर होगा। हम नूह के जमाना में जब चलते हैं तो नूह ने एक बोट बनाई। जब उसने वो बोट बनाई तो उस बोट के अंदर सिर्फ उसका खानदान बचा, और उस बोट के अंदर भी वही लोग दाखिल हुए जिन्होंने नूह की बात को माना। इसमें भी हमें यीशु नजर आ रहा है। यीशु ने भी सलीबी मौत के बाद अपने आप को एक खूबसूरत बोट की शक्ल देते हुए कहा कि मैं राह, हक और जिंदगी हूँ, जो कोई मेरे साथ आएगा वो अपनी जिंदगी हासिल करेगा। उसने भी हमें एक बोट का दौर दिखाया है। तो मेरे से तो जितने लोग उसकी सलीब की मौत पे यकीन रखते हैं, उसके ऊपर ईमान रखते हैं और ये मानते हैं कि वो खुदा का बेटा है, मेरे अजीजों वो यकीनन नूह के खानदान की तरह बच जाएंगे। और वो नूह का खानदान जिस तरह 8 जाने बची, हम बहुत सी जाने बच जाएंगी जब हम उसके ऊपर ईमान रख के उस बोट के अंदर दाखिल हो जाएंगे। हम इसी तरह इसहाक के अंदर भी यीशु को देखते हैं। इसहाक को इब्राहिम ने कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया, ले चला। इसी तरह मेरे अजीजों,
मेरा और आपका यीशु भी अपने बाप का ताबेदारी के अंदर रहता हुआ हमारे लिए कुर्बान होने को वो तैयार हो गया। हम जब यकूब को देखते तो यकूब के अंदर भी यीशु की शक्ल नजर आती है। यकूब अपनी बीवियों की छुपाने के लिए, अपनी बीवियों की हिफाजत के लिए अपने मामू के घर लाबन के घर चला जाता है। गुनहगार इलाका है, गुनाह से भरा हुआ इलाका है। लाबन के पास जब जाता है तो वहां पे वो अपनी बीवियों की निगहबानी के लिए पहुंच जाता है। उसे बड़ी मुश्किलों का, दुखों का सामना करना पड़ता है। आप ईमानदार बेटे और बेटियां इस स्टोरी से बड़े अच्छे तरीके से वाकफ है। यीशु को भी मेरे अजीजों अपनी दुल्हन को बचाने के लिए उसे जमीन पे आना पड़ा ताकि वो अपनी दुल्हन को महफूज कर सके, और वो हमें महफूज करके अपने लहू में छुपा के, अपना लहू बहा के अपने लहू में हमें छुपा के वो चला गया है। यकूब तो वहां से अपनी बीवी लेके निकला, लेकिन यीशु अपनी बीवी यहाँ से लेके नहीं निकला। यीशु जल्द आएगा, आपको और मुझे अपने साथ लेके जाएगा। हम जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें यूसुफ की एक स्टोरी नजर आती है। यूसुफ ने भी बड़ी दुखों और तकलीफों की जिंदगी गुजारने के बाद एक सरफराजी को हासिल किया। उसके भाइयों ने उसे 20 सिक्कों में बेच दिया। मेरे और आपके यीशु को भी उसके शागिर्द ने 30 सिक्कों में बेच दिया। मेरे जो यूसुफ मिस्र के अंदर जाके गुलामी की जिंदगी गुजारने के बाद सरफराजी पाता है। खुदा भी, यीशु भी जब जमीन पे रहते हैं तो हेरोदीस से बचने के लिए वो मिस्र की तरफ चले जाते हैं, और रूहानी तौर पे भी वो मिस्र के अंदर ही जाके मरता है, क्योंकि मिस्र का इलाका बहुत ही गुनहगार इलाका रूहानी तौर पे उसे कहा जाता है। और मेरे जीजू जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें और एक खूबसूरत इंसान नजर आता है जो यीशु जैसी काम करता हुआ हमें बेशक वो नजर नहीं इतना ज्यादा आ रहा, लेकिन वो खुदा के साथ साथ चलता हुआ हमें नजर आ रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि आने वाले दिनों में रैप्चर होंगे, ये कोई नई बात नहीं है। रैप्चर ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर भी दो लोगों के हुए हैं, एक तो हनूक का हुआ है और दूसरा एलिया का हुआ है। मेरे लिए जब हम पैदाइश 2 बाब के अंदर उसकी 4 आयत के अंदर देखते हैं, वहां पे एक नया आसमान और नई जमीन हमें नजर आती है। और जब हम मुकाशवा की किताब में चलते हैं तो वहां पर भी हमें उसका 21 बाब और उसकी पहली 6 आयतों में हमें एक खूबसूरत नया आसमान, नया जमीन देखने को मिलता है। वहां पे कहता है कि पहला आसमान जाता रहा और पहली जमीन जाती रही, समुंदर भी ना रहा। ये पहले वाली चीजें हैं जो जाती रही और वही चीजें दोबारा से आगे रिपीट होती जा रही है। मेरे जो बहुत से लोग कहते हैं कि मुकाशवा बहुत ही मुश्किल किताब है, लेकिन मैं आपको सबको आज बताना चाहती हूँ, खुशखबरी देना चाहती हूँ कि मुकाशवा की किताब बहुत हजारों साल पहले जो लिखी गई हैं चीजें वो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर हमें होती हुई नजर आती है। मुकाशवा की किताब बेसिकल डराने वाली किताब नहीं है, जगाने वाली किताब है। आपकी आंखों को, जहन को रोशन करने वाली ये किताब है। मेरे जो पैदाइश 2 बाब उसकी 7 आयत में हमें एक खुदावन मिट्टी से बर्तन, मिट्टी से इंसान बनाता हुआ नजर आता है। और दानियल 2 बाब में भी एक खुदावन हमें वहां पे नजर आता है कि मिट्टी के लोग जो थे कब्रों में सोए हुए हैं, और जब यीशु आएगा तो वो जल्द जाग उठेंगे और खुदावन के साथ कुछ तो जिल्लत के लिए और कुछ रिसवाई के लिए और कुछ खुदा के साथ चलने के लिए, जाने के लिए जाग उठेंगे। हम इसी तरह जब आगे बढ़ते हैं तो मुकाशवा पैदाइश 2 बाब उसकी 8 आयत में खुदावन एक बागे अदन का हमें जिक्र करता हुआ नजर आता है। बागे अदन में एक बाग लगाया गया है, उसमें इंसान है, और उसके बाग के बीच में एक खूबसूरत हमें दरख्त नजर आता है जो नेक और बद का है, और जिंदगी का दरख्त वो हमें नजर आता है। जब हम मुकाशवा की किताब में चलते हैं तो मुकाशवा की 22 बाब उसके पहली 2 आयतों में लिखा है, फिर उसने मुझे बुलोल की तरह चमकता हुआ आबे हयात एक
दरिया दिखाया जो खुदावन बड़े के तबके से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच बहता था। दरिया के पार जिंदगी का दरख्त था। मेरे जो ये जब दरख्त है, ये वही दरख्त है जो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर हमें पैदाइश की किताब के अंदर अदन के बाग के अंदर नजर आया है। ये वही दरख्त खुदा यूहन्ना आरब को, जो कि उसका कजन भी था, मामू का बेटा भी था, उसको ये सारे मुकाशवा नजर आते हैं। फिर जब हम पैदाइश 2 बाब इसकी 18 आयत की तरफ चलते हैं तो वहाँ पे आदम की शादी होती हुई हमें नजर आती है। वहाँ पे लिखा खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाया जाए। जब खुदावन यहाँ पे ये कह रहा है मददगार, यानी कि शादी के बंधन में जोड़ने का खुदावन एक तरीका सोच रहा है। और जब हम इसको देखते हैं मुकाशवा की किताब में उसके 19 चैप्टर में उसके 7 आयत में लिखा कि आओ हम खुशी करें, नहायत ही शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बड़े की शादी आ पहुंची है, उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसने मुझसे कहा लिख, मुबारक है वो जो बड़े की शादी की जियाफत में बुलाए गए हैं। यहाँ पे भी एक शादी हो रही है। जब पैदाइश में हम देखते हैं 2 बाब 18 आयत में आदम और हवा की शादी हो रही, तो मुकाशवा के 19 चैप्टर में उसकी 7 आयत में भी मेरी और आपकी यीशु के साथ शादी हो रही है। जियाफत खूबसूरत प्यार है और खुदा का फरिश्ता यूहन्ना को कहता है आ और लिख, मुबारक है वो जो लोग बड़े की शादी की जियाफत में शामिल हैं। इसी तरह मेरे चीजों में मुकाशवा 21 बाब और उसकी 9 आयत के बी पार्ट में भी एक शादी नजर आती है। वो भी ये आखिरी शादी है। बाइबल मुकद्दस के बिल्कुल आगाज में भी एक शादी हो रही है और बाइबल मुकद्दस के बिल्कुल लास्ट के चैप्टर में भी एक शादी हो रही है। और वो शादी कहते हैं कि एक ने आके मुझसे कहा इधर आ और तुझे आप मुझसे दुल्हन भी बड़े की बीवी भी ये कहती हुई दिखाई दे आ और मुझे ले। वहां पे कलीसिया खुदा को यीशु को खुद ये कहेगी आ और मुझे ले, क्योंकि हमारी उसके साथ एंगेजमेंट हो चुकी हुई है। मेरे जो यहूदी जमाने का एक कल्चर था, वहाँ पे एंगेजमेंट हो जानी कोई छोटी सी बात नहीं होती थी। आजकल तो एंगेजमेंट हो जानी हम बहुत सी दफा उस मंगनी को तोड़ भी देते हैं, लेकिन यहूदी कल्चर के अंदर जिसके साथ मंगनी होती थी वो मंगनी तोड़ी नहीं जाती थी। हमें एक अच्छी मिसाल मिलती है यूसुफ की और मरियम की। यूसुफ को जब पता चलता है कि मुकद्दसा और मरियम प्रेग्नेंट है तो वो इरादा करता है कि मैं इसे चुपके से छोड़ दूं, लेकिन इरादा करता है, वो वैसे भी छोड़ सकता था, लेकिन क्योंकि यहूदी कल्चर के अंदर भी अंगेज को तोड़ना बहुत मुश्किल था, उसके लिए आपको एक सबूत देना पड़ता था कि मैं इस वजह से इस लड़की से अपनी अंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ। और 2 साल का पीरियड होता था। 2 साल के बाद लड़के की जिसके साथ उसके साथ मंगनी होती थी वो आके अपनी दुल्हन को ले जाता था। 2 साल के अंदर वो उसकी तैयारी कर रहा था। आज तो लड़की वाले तैयारी करते हैं ना, उस वक्त यहूदी लड़का खुद तैयारी करता था, जहेज बनाता था, कपड़ा बनाता था, उसके रहने सहने के लिए, उसके कपड़े ओढ़ने के लिए। आज मेरे लिए और आपके लिए भी यीशु तैयारी कर रहा है। 2 साल का पीरियड खुदा के पास है। 2 साल का जैसे ही पीरियड पूरा हो जाएगा वो अपनी ब्राइड को लेने के लिए आ जाएगा। मेरे जीजा हम इसी तरह जब आगे बढ़ते हैं तो मुकाशवा की 22 बाब उसकी 7 आयत में भी दुल्हन की आवाज हमें आती हुई नजर आती है। और मेरे जीजो पलूस भी हमें ये सिखाता और कहता है, अब्रानियों के नहीं ग्रंथियों के खाते में पहले ग्रंथी उसका 15 बाब और उसकी 45 आयत में पहला आदमी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। तो मेरे जीजो खाकी ने जो काम किया लाजम था कि आसमानी को भी वो काम करने हैं। मैं और आप भी खाकी हैं, लेकिन हमने अगर तो आसमानी खुदा की दुल्हन बनना है तो फिर आसमानी काम हमने करने हैं। ऐसे काम करने हैं जैसे काम उसे पसंद आए, ताकि जब वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आए तो हमारे अंदर किसी तरह की कोई झुर्री नजर ना आए, कोई दाग नजर ना आए। और मेरे से तो जब पैदाइश 3 बाब में हम देखते हैं कि एक सांप का जिक्र है, वहाँ पे एक सांप औरत को ये कहता हुआ नजर आता है कि ये
खा ले, इस फल के अंदर तुझे बहुत ही खूबसूरत टेस्ट नजर आएगा, टेस्ट मिलेगा, तेरी आंखें रोशन हो जाएगी। और मुकाशवा के 13 चैप्टर में भी हमें एक फेबी सांप नजर आ रहा है, वहां पे भी उसने उस औरत को तंग किया है। और मुकाशवा के 13वें चैप्टर में भी वो औरत की नस्ल को तंग कर रहा है। याद रखिएगा, आप और मैं औरत की नस्ल से हैं, क्योंकि यीशु औरत की नस्ल से है। मैं और आप जब यीशु पे ईमान रखते हैं तो हम भी यीशु की नस्ल, औरत की नस्ल से हैं। मेरे जीजो, वहां पे भी वो औरत की नस्ल के लोगों को सताता है, यानी उन लोगों को, खुदा के लोगों को गुमराह करता है, उन्हें परेशान करता है ताकि वो अपने ट्रैक से उतर जाए। लेकिन वो मुकार अपनी मुकारी में जीत कभी भी नहीं पाएगा। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर वो हमें जीतता हुआ नजर आता ही है, तो न्यू टेस्टामेंट के अंदर हमें वो हारा हुआ नजर आता है, वो सलीब से हारा हुआ है। ये खूबसूरत बात है। आज वो हमें जितना मर्जी सता ले, लेकिन वो तंग कर ले, लेकिन हम उसके आगे गिरते नहीं है, झुकते नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हारा हुआ है। मेरी दीदी, जब हम पैदाइश के 5वें चैप्टर की आदम की नस्ल के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें 10 नाम नजर आते हैं। इन 10 नाम के अंदर आदम का जो बाप था वो उसे कहता है कि ये अपनी कौम को आराम देगा। नूह, नूह के बारे में कहते हैं, नूह के नाम का मतलब है आराम देगा। इसी तरह मेरे जीजो, यीशु के नाम का भी मतलब है कि वो अपने लोगों को निजात देगा, आराम देगा। और हम इसके अंदर और भी चीजों को ऐड करना चाहिए। दानियल के सहीफा को भी, हिस्कियल के सहीफा को भी जब हम मुकाशवा के साथ जोड़े तो वो सेम टू सेम चीजें होती है। इसीलिए तो सुलेमान जो दानिशमंद था, बहुत ही अक्लमंद इंसान था, अकल से भरा हुआ था, वो अपने इस शायरी की किताब में, वाइस की किताब में कह देता है 3 बाब उसकी 15 आयत में, जो कुछ है वो पहले हो चुका, और जो कुछ होने को है वो भी हो चुका। खुदा गुजरी चीजों को फिर से तलब करता है। मेरे जीजो, जो कुछ हमारी जिंदगी में हो रहा है ये पहले हो चुका हुआ है। आपके साथ ये मेरे साथ नहीं हुआ, हमारे से पहले जितने लोग हुए उनके साथ ये हो चुका, वो भी इन टेंशनों में, इन मुश्किलों में से होके गुजरे हैं। मेरे और आपके वालिदैन को जब हम देखते हैं, वो भी इन मुश्किलों में से गुजर रहे हैं। बच्चों को पैदा किया, बच्चों को पढ़ाया, इनके फ्यूचर के बारे में सोचा, और फिर जगह लेनी, घर बनाना। इसी तरह जब हम उस जगह पे आ पहुंचे, हमने भी वही काम किया जो उन्होंने काम किया। इसलिए सुलेमान बड़ी खूबसूरत अंदाज में, शायरी के अंदाज में लिखता हुआ मुझे नजर आता है कि जो कुछ हो चुका है मेरे जीजों, वो पहले ही हो चुका है। खुदावन की खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावन की